Hi guys, how are you? So, what we have discussed till now, that is generally we have discussed for that generally what are the factors affecting SN2 reactions, no? So today our topic is that what are the factors affecting SN1 reactions. So generally it's not very important topic, you can say, from class 12, but still we have to study because questions may come, ना क्वेश्चन आ सकते हैं तो let's start the video, let's start the topic today. So generally our topic is that, so generally it's from factors affecting SN1 reaction. So factors affecting SN1 reactions. So what are the factors affecting SN1 reaction? So only generally there are many steps. So that is the first step is that the first factors, you can say that the resonance, not resonance, that is a substituent effect. So we all know that what is the substituent effect in this case. So substituent effect. Okay, so first factor is that for SN1 reaction, that is a substituent effect. So what is substituent effect? तो generally हम लोग ने देखा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर जनरली क्या होते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं. जनरली जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो जनरली इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द रिएक्शंस. दैट मींस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट द रेट ऑफ द reactions, you can say the rate of the reaction depends strongly, reaction depends strongly on carbocation stability, So generally the rate of the reaction depends strongly on the carbocation stability, which you have already seen in our first lecture series. That is when I'm teaching you, when I taught you about the SN1 reactions. So that time I told you about this, that generally it depends on the carbocation stability. So carbocation stability means, so generally 3 degree carbocation यहाँ पे generally SN1 reaction में क्या होता है. Generally first of all it forms a carbocation, then it attacks by a nucleophile from the both faces. One is from the front side and the other from the back side of this electrophilic carbon, na? That is called carbocation, and it forms a racemic products. We have studied in our first series of videos that where I have discussed the S1 reactions, no? So that means the substituent effect means it depends on the carbocation stability. So generally the rate of the reaction depends on the carbocation stability. That is, we have already studied that 3 degree carbocation is greater than 2 degree carbocation, it will be greater than 1 degree carbocation, and 1 degree carbocation is stable than methyl carbocation. That is, it has no such groups to minimize the carbon positive, no? So that's why for SN1 reactivity, अगर इसका reactivity देखोगे, that is SN1 reactivity, तो SN1 reactivity क्या होंगे जनरली, सबसे ज्यादा किस पे ज्यादा reactivity ज्यादा होंगे, 3 degree alkyl halide, then greater than 2 degree alkyl halide, then it will be greater than 1 degree alkyl halide. Similarly, it will be greater than methyl halide, that is CH3X. So it is the reactivity order. That means it is the one factor. That factor is named as substituent effect. तो यहाँ पे generally it depends on the carbocation stability, and also we know that alkyl group generally it enhances the stability of the carbo. That means it enhances the SN1 reactions. मतलब alkyl group होने से क्या होता है, it enhances the SN1 reaction by stabilizing the carbocation. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे एक कार्बन पॉजिटिव के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो उसमें देखा गया कि इट इनहेंसेस द SN1 रिएक्शन. तो SN1 रिएक्शन को क्या करेंगे, ज्यादा प्रोमोट करेंगे, या बोल सकते हो कि ज्यादा प्रोसीड होंगे SN1 रिएक्शंस, बिकॉज इट एनहेंसेस द you can see it enhances the SN1 reactions. That means by stabilizing the carbocation. Okay, now the next reactions we have to see, that this is very important in this SN1 reactions. यही सबसे ज्यादा important है, like not to compare with the SN2 reactions. SN2 reaction में हम लोग ने बहुत सारा फैक्टर्स देखा, यहाँ पे जनरली इतना देखना नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा important है, that is one reaction, that is the reaction via resonance stabilizations.
तो अगर हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के द्वारा भी उसके 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 उसको कंपैरिजन करने से भी हम लोग का स्टेबिलिटी मतलब अटेंड हो जाते हैं या हम लोग बोल सकते हैं कि अचीव हो जाते हैं. सो जनरली विल टेक two types of bromide here, that is we generally use to take alkyl bromide, no. So here somehow literally I will change here, so I will take allyl bromide. So I will take allyl bromide. With this I will take vinyl bromide. In the starting of this chapter we came to know that what is allylic part and what is vinylic part. So what is allylic part? So generally the allylic part generally it calls that what it allylic part means it is sp2 carbon then ch2 then halogen bond. ये था क्लासिफिकेशन में हम लोग ने पढ़ा. और विनाइलिक पार्ट में क्या होता है जनरली इट इज sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एलाइलिक ब्रोमाइड है तो ये विद द रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशंस दैट मींस इट कैन फॉर्म रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशंस, बट विनाइलिक ब्रोमाइड में जनरली इट डजंट फॉर्म एनी रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली हम लोग थ्रू बाय सम रिएक्शंस विल गेट टू नो दैट why allylic bromide will undergoes fast reaction in comparison to the vinyl bromide. So let's start the reaction, as well as we'll see that so by a resonance stabilization whether the compound is stable. Yes, it will be stable. Why? Because if the positive charge is spread everywhere, suppose we all know that here the carbon will be, this carbon will be somewhat, this carbon will be positive in nature by losing this halide ion. So here this carbon positive, if it is generating, then generally it will form a resonance structures, and this resonance structure will give us more favorable product, or you can say much faster reactions in comparison to the vinyl bromide, where the carbon is sp2 hybridization which is linked to the halogen atoms. Let's start the reactions and you'll get to know that how it is possible. So let's start the reactions. Can generally, तो यहाँ पे हम लोग एलाइल ब्रोमाइड के साथ स्टार्ट करेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग विद एलाइल ब्रोमाइड. ठीक है, तो हम लोग एलाइल ब्रोमाइड के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शंस. तो जनरली एलाइल ब्रोमाइड में हम लोग एक रिएक्शंस लेने वाले हैं, दैट इज ये एक एलाइल ब्रोमाइड है. तो यहाँ पे मैंने जिगजैग वे में लिखा. अगर तुम लोग को डाउट, अगर तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होते तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, इस कंपाउंड को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड C, that is carbon hydrogen, then CH2 then ब्रोमीन. तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कंपाउंड मैंने ठीक लिखा कि नहीं. तो ऑब्वियसली मैंने ये कंपाउंड को ठीक से लिखा. तो इस कंपाउंड को मैं अगर यहाँ पे इस तरीके के लिखता हूँ, H2C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br. तो ये क्या है, एक एलाइल ब्रोमाइड है. क्यों यहाँ पे एलाइल ब्रोमाइड है? बिकॉज हम लोग का एलाइल ब्रोमाइड का पार्ट क्या होता है, sp2 कार्बन CH2 बॉन्ड हेलोजन. तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन है, ये कार्बन होता है sp2 कार्बन, और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन एटम है, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज द CH2 पार्ट. सो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये sp2 कार्बन है, मतलब ये sp2 कार्बन है, देन CH2 देन X, दैट इज कॉल्ड हेलोजन, दैट इज ब्रोमीन एटम. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एलाइलिक ब्रोमाइड है, एलाइल ब्रोमाइड है. तो यहाँ पे ये जो एलाइल ब्रोमाइड है, दैट मीन्स it will, first of all it will what, it will form a carbocation. Okay, we all have seen na, in case of hydrolysis of N-butyl chloride we have generally it follows SN1 reaction ना. तो मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें SN1 रिएक्शन साथ ही साथ SN2 भी रिएक्शन मैंने डाला. तो SN1 रिएक्शन में मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल लिया था, सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड लिया था मैंने. वहां पे हम लोग ने देखा कि ये जो कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड होते हैं, जनरली पहले ये कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं. मतलब यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इट विल बी ब्रेक डाउन. सो यहाँ पे क्या होंगे, अगर ब्रेक होते हैं तो जनरली क्या होंगे,
इट इज अ वेरी स्लो स्टेप, जनरली इट फॉर्म्स एन इक्विलिब्रियम. सो जनरली यहाँ पे एक क्या जनरेट होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, दैट इज H2C डबल बॉन्ड CH देन CH2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है इन दिस कार्बन, जो डायरेक्टली अटैच था किसके साथ, एक हेलोजन एटम के साथ. तो इसके बाद यहाँ पे जनरली अभी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुत एक स्लो स्टेप है ना. हम लोग ने कल देखा था ये बहुत एक यहां से यहां तक फॉर्म होने में इसको क्या कितना टाइम लगा, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली क्या है, एक स्लो स्टेप है. तो जनरली H2C दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो सकता है, इट कैन फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. मतलब यहाँ पे इस कार्बन पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज कर सकता है. सो दिस इज नो सच ग्रुप इज देयर, बट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका साथ ही एक एडजेसेंट क्या है, डबल बॉन्ड है. So this double bond can be come here. So to stabilize this carbon positive. So what will be the structure? What will be the next structure we will generate here? So generally we will generate one structure that is H2C. But here this double bond is displacing from this carbon, na? From this carbon. So generally this carbon will have a positive charge, and then it will be single bond, then double bond CH2. Clear? Now whom the carbon positive will इस कार्बन पॉजिटिव को कौन अभी स्टेबलाइज करेंगे. यहाँ पे इस कार्बन को तो स्टेबलाइज कर दिया ये कार्बन ने, बट इस कार्बन पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करेंगे. तो यहाँ पे जनरली ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इस कार्बन में आया, इसके बाद इस कार्बन में आया, मतलब इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कार्बन एटम्स, यू कैन से. दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हर एक कार्बन में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. हम लोग देख पा रहे हैं ना, पहले इस कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव जनरेट हो रहे थे, अभी एकदम टर्मिनल मतलब फर्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट कार्बन टू द फर्स्ट कार्बन. दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडिंग इक्वली ओवर ऑल द कार्बन एटम्स. तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि H2C बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे भी एक पार्शियली बॉन्ड होंगे, दोनों में एक पार्शियली बॉन्ड एराइज होंगे, बट यहाँ पे एक क्या चार्ज होंगे, हर एक पूरा कंपाउंड में क्या चार्ज होंगे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, मतलब द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडिंग ऑल दोस कार्बन एटम्स. तो ये होते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की. अगर मेरे को अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मुझे कोई आके अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो उसको तो वो तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना. बट हम लोग ने क्या किया कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो मुझे जो दे रहा है, जो मेरे साथ लिंक्ड है, वो भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज मेरे से उसमें भी जा रहा है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं कि आओ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो तुम भी पॉजिटिव चार्ज बनो. तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कि मेरा अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थ्रू रेजोनेटिंग. और रेजोनेटिंग मतलब कैसे होता है, जनरली इट displaces the pi bond which is adjacent to this carbon atom. तो जनरली इसको बोला जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. ये पॉसिबल है इन द केस ऑफ एलाइल हैलाइड और यू कैन से एलाइल ब्रोमाइड. नाउ व्हाट इज दिस केस, जनरली यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, थ्रू बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन हम लोग बोल सकते हैं. सो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बोल सकते हैं इसको, ठीक है. तो जनरली यहां पे हम लोग ने देखा द कार्बोकैटायन व्हिच इज फॉर्म्ड इन आयनाइजेशन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज with a positive charge spreading over what, spreading equally over two carbon atoms. But in case of vinylic halide, whether it is possible, so let's see for the vinylic halides. It is a very important topic, that is important topic from SN1 reactions. You don't have to skip this. See, they are generally ये सब टॉपिक हम लोग को ज्यादातर हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलते हैं, बट अगर क्वेश्चन टफ होते तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़ा घुमा के. तो यहाँ पे जनरली अगर हम लोग विनाइल हैलाइड के ऊपर चेक करते हैं, तो विनाइल हैलाइड क्या होता है जनरली, तो विनाइल हैलाइड के बारे में मैंने कुछ जगह बोला sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है. तो विनाइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी
नॉट sp3 कार्बन, sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक सिंपल कंपाउंड लूंगा H2C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। ये क्या है, एक विनाइलिक, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हम लोग बोलते हैं जनरली विनाइलिक पार्ट, दैट इज विनाइलिक कार्बन। क्यों विनाइलिक कार्बन है? बिकॉज ये कार्बन sp2 कार्बन है, उसके साथ क्या है, हेलोजन एटम है, मतलब sp2 कार्बन हेलोजन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो जनरली यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग SN1 रिएक्शन देखते तो पहले क्या होंगे, इस कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएंगे। टूटने से क्या मिलेंगे हम लोग, एक प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज H2C डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। नाउ this is the possible product it will form when the carbon and chlorine bond will be break. Now in this case, whether this structure is very easy to get, because if it forms resonance, suppose this double bond is displaced towards this carbon to minimize this carbon, suppose whether it is possible, because if it displaces then this carbon will be positive, so whether it is possible for this, see यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो अगर यहाँ पे आता भी है तब भी क्या होंगे, यहाँ पे कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, बट वेदर इट इज सो दैट यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से अगर यहाँ पे इस कार्बन में आ जाते हैं तब ये स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा होगा यहाँ पे, पॉसिबल है। इन दिस केस इट इज पॉसिबल फॉर दिस, पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, मैं इस चीज को एक बार और लिख देता हूं, इसको मैं तोड़ के लिख देता हूं, CH है सपोज, तो 2 3, तो एक बॉन्ड तो खाली हो गया ना, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे घूम के आ जाता है तो क्या, कितना बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितना बॉन्ड होगा, 2 3 4। इसके बाद अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, बट यहाँ पे एक तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सपोज यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता है फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, सपोज कार्बन के पास सपोज आ रहा है, बट एक्चुअली में अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 3 4 5 6, फिर भी तो ये कार्बन क्या नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अ स्टेबल कार्बन, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं बोल सकते कि अगर यहाँ पे हम लोग को अगर बाई चांसली अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं वन विथ along with a one double bond, so generally this structure, ये जो स्ट्रक्चर है is very difficult, ये स्ट्रक्चर मिलना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, मतलब एक बहुत बड़ा मुश्किल, ये बहुत बड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर है, मतलब तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ऐसा होता है, सपोज अगर ऐसा भी होता है तब भी तो जनरली ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं कि अगर क्लोरीन है तो ये इट हैज 3 लोन पेयर्स, तो अगर वन ऑफ द लोन पेयर इज कम टू दिस कार्बन क्लोरीन टू मेक ए कार्बन 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 हेलोजन डबल बॉन्ड, दैट मीन्स हियर इन दिस केस दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो यहाँ पे क्या होंगे जनरली, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, दैट इज H2C, दैट इज नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, एक क्लोरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तब भी हम लोग बोल नहीं सकते कि ये कंपाउंड, जनरली अगर ऐसा भी होता है, अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट होते हैं तब भी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इतना इजीली प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। बट यस स्टिल हियर ये रेजोनेंस पॉसिबल है, बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर एक वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is coming to this carbon chlorine to make a carbon chlorine double bond, then this carbon will be valency, this carbon now has a valency 5 when it makes a double bond. So similarly this double bond will be shifted to this carbon, to the adjacent carbon, so that this carbon will be negative in charge. So it is, we are getting a resonance structure, you can see, but in this case there are no such resonance structure is possible, that is very very difficult to get. So that means from that part, from the aryl and vinylic part, we generally seen that the vinylic halide generally it does not form, or you can see that it does not spread over the 2 carbon atoms, but you see, if you see for aryl halide, if you see for allylic part, then you have seen that it can spread over 2 equally carbon atoms by resonance. So that's why the allylic halide, generally you can see that the allylic halide it undergoes SN1 reactions, but the vinylic halide does not show any reactions. So this is the procedure, or this is the way
to see that how the reaction proceeds. So I hope guys you understood my videos, you understood my lectures. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज डिस्कस विथ माय तुम लोग अवेलेबल कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन में बताओ क्या प्रॉब्लम है, या फिर यू कैन टेक्स्ट मी अप, यू कैन कांटेक्ट मी व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा बहुत टाफी है, सबके लिए टाफी लगेगा बिकॉज ऑल आर न्यू टू यू. सो आई होप अच्छे से रहो, बस वही अच्छे से रहो, कीप हैप्पी एंड मम्मी पापा का ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हाथ धो के खाना, बाहर जाने से सैनिटाइज करते रहना. ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू.